Namaste everyone and welcome to day 35, set 35 of our series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared in CAT since CAT 2017 to CAT 2024. Now we have finished off all the sets of quant-based reasoning. QBR जो variety है उसके 34 sets I was able to find. I've already explained what does QBR refer to. I'm sure that you have gone through all the 34 sets by now. If not, the entire playlist is available for you. Please watch all the sessions for QBR. Today onwards we'll be starting with all the sets that are based on Venn diagrams. So this is the second most frequently appearing variety in the DLR section of CAT. तो Venn diagram का पहला set 35 overall of the 114 sets. It is from CAT 17 slot 1. Let's have a look and apply our fate framework to decide whether a particular set should be picked in the first, second, third go or not. So applicants for the doctoral program of Ambi Institute of Engineering and Bambi Institute of Engineering have to appear for CET. The test has 3 sections. Those appearing for CET, those at or above 80th percentile in at least 2 sections or at about 90th percent overall. So we know that there is some data which is about getting scores in physics, chemistry, maths and getting a score of more than 80 percentile or more than 90 percentile. इतना पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि ये Venn diagram related है. So I'll say in terms of familiarity, if you have practiced Venn diagram, which I'm assuming that you will in due course of time, you will categorize this as definitely familiar. In terms of ambiguity, which is vagueness in language, difficulty to interpret, let's quickly have a look. To be very honest, the moment this part started, which was, and I don't know, you can share your feelings in the chat, those at or above, I'm very, I'll want to go deep. This is my basic nature. तो at और above मतलब 80th percentile हुआ तो भी चलेगा, 80th से बड़ा हुआ तो भी चलेगा, कम से कम 2 sections में हो और साथ में and बोल दिया मतलब it has to be simultaneously true, both the conditions have to be true. At or above मतलब 90th equal or greater than are selected for 80 is used by AIE. Then for the 200 candidates, I am not feeling very comfortable. मतलब मैंने जब पहली बार पढ़ा तो I was not very comfortable. I had to pinpoint, structure it out कि AET क्या है, CET क्या है, AET का criteria, overall का criteria. Although these are things that we use in day-to-day life for entrances like CAT, ZAT, NMAT, etc. कि आपको sectional भी निकालना है, overall भी निकालना है. They are relatively easier to deal with compared to the language that they've used. The only problem is language. So I'll say ambiguity is not in our favor in the sense that this has a lot of ambiguity. मुझे एकदम से clear नहीं हुआ, ये मेरी feeling थी, हो सकता है you might have other feelings. Time consumption, there is this entire 4 paragraphs that I have. I feel this is going to take time, so time consumption मेरे favor में नहीं है. Extra info in questions को quickly check कर लेते हैं. Extra info, if all the 3 sections are suggesting if, मतलब there is a possibility कि multiple scenarios बने. Extra info in questions भी मेरे favor में नहीं है, मैं इसे pick नहीं करूँगा. I'll keep it as maybe 5th set, 6th set, depending कितने sets आ रहे हैं आपके इस साल के CAT में. So on the basis of that, अगर 5 sets है तो मैं इसे 4th या 5th रखूँगा. Top 3 का हिस्सा तो मेरा नहीं होगा based on my analysis. Now having understood this कि exam में तो शायद pick ना करे, seems to be a difficult set. It makes all the more reason for us to now spend time and understand कि इस तरह के सेट्स अगर आ भी गए, थोड़ा easier version आ गया इसका, तो whether we'll be able to solve it or not. So let's first develop a comprehensive understanding of what the clues refer to. इनका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. So applicants for the doctoral program, तो इतना clear है कि 3 sections में पेपर देना है और कम से कम 2 sections. अगर if I highlight this part, so it says those above 80 percentile in at least 2. अब मैं at और above को इग्नोर कर दूंगा, मुझे पता है greater than equal to की बात कर रहे हैं, तो greater than और equal to 80 percentile अगर 2 sections में कम से कम, तीनों में हो बहुत अच्छा, तीनों में greater than 80 percentile बहुत अच्छा, कम से कम 2 में चाहिए greater than 80 percentile and overall 90 percentile and greater than equal to 90 percentile overall. तो simple condition, जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जगह कैट का सिचुएशन ले तो आपका VARC है, DLR है, QA है, कम से कम 2 सेक्शन में आप 80 परसेंटाइल के ऊपर ले आओ. लेट्स अज्यूम कि आपने VARC में ला दिया, आपने DLR में ला दिया, क्वांट में नहीं आए, कोई बात नहीं, 80 परसेंटाइल के ऊपर दोनों में आ गए और ओवरऑल आपका 90 परसेंटाइल के ऊपर है, तो विच इज गुड इनफ फॉर व्हाट? They are selected for the next stage, which is advanced entrance test AET conducted by AIE. तो जो पहला कॉलेज है वो क्या बोल रहा है, भाई हम तो एक बेसिक टेस्ट लेंगे प्रिलिमिनरी, विच इज कॉल्ड CET. सीईटी में कम से कम 2 सेक्शन में 80 परसेंटाइल के ऊपर और ओवरऑल 90 परसेंटाइल के ऊपर, तो यू विल गो टू नेक्स्ट स्टेज
which is AET, and AET is used by AI for final selection. अब AET का डेटा शायद दिया हो, आगे नहीं दिया हो, doesn't matter. आगे जो डेटा दिया है वो दिया है for the 200 candidates who are at 90 percentile or above overall based on CET. मतलब अब शॉर्टलिस्ट बना ली हमने 200 लोग ऐसे ढूंढ लिए. कौन से 200 लोग? जो 90 परसेंटाइल के ग्रेटर देन और इक्वल टू में ओवरऑल. हो सकता है उनका एक सेक्शन निकला हो सिर्फ फिजिक्स, हो सकता है एक सिर्फ केमिस्ट्री निकला हो सकता है कम से कम 2 सेक्शंस निकल गए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स एंड सो ऑन. 2 से ज्यादा तीनों निकल गए हो, कोई भी ना निकला हो. तो ये 200 का डेटा है हमारे पास फॉर द सीईटी. नो वन इज बिलो 80th परसेंटाइल एंड सो ऑन. सो ये जो 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, दिस इज फॉर टोटल 200 कैंडिडेट्स. तो इनके लिए हम बहुत कन्वीनियंट सा वेन डायग्राम बना के थॉट दे सकते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. सो विल से वी कैन से कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सेक्शंस और 90 परसेंटाइल के ऊपर, 90 परसेंटाइल के ऊपर लाने वाले 200 लोग हैं. फर्स्ट लूप को अगर मैं देख लूं, नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल, तो नन वाला 0 है. मतलब पीसीएम तीनों ही सब्जेक्ट्स में 200 के 200 लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल लाए. सो दीज आर ओवरऑल 90 परसेंटाइल के ऊपर, बट बाकी सारा डेटा इज अबाउट 80th परसेंटाइल. तो फिजिक्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80th परसेंटाइल, केमिस्ट्री में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80th परसेंटाइल. दिस 200 का डेटा इज फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90th परसेंटाइल. मैथ्स के लिए अगेन दिस डेटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80th परसेंटाइल. ठीक है, तो ये कुछ क्लूज हैं. फिर आगे का डेटा क्या बोल रहा है? बीआईई यूजेस अ डिफरेंट प्रोसेस फॉर सिलेक्शन. अब जो दूसरा कॉलेज है वो कुछ अलग प्रोसेस फॉलो कर रहा है. वो क्या बोल रहा है? इफ एनी कैंडिडेट इज अपियरिंग इन द एटी, कैंडिडेट एटी में अपियर ही कब करेगा? जब कम से कम 2 सेक्शन में 80 परसेंटाइल से ग्रेटर हो, ओवरऑल 90 हो. तो अगर एटी में अपियर कर रहा है, बीआईई कंसिडर्स देयर एटी स्कोर फॉर फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल इन पी. मतलब अब इंटरेस्टिंग सिलेक्शन क्राइटेरिया ध्यान से समझना, बिकॉज दिस कैन बी प्रीटी यूजफुल टू अंडरस्टैंड सब क्वेश्चंस. जो दूसरा कॉलेज है वो बोल रहा है यार ये सीईटी एईटी हो ही नहीं है ना. सीईटी क्या थी? बेसिक एग्जाम. एईटी क्या थी? एडवांस टेस्ट. अगर सीईटी में कोई 2 सेक्शंस में कम से कम 80 परसेंटाइल से ग्रेटर ला रहा है और ओवरऑल 90 परसेंटाइल से ग्रेटर ला रहा है, तो उसे एईटी में भेजेंगे. अब बीआईई बोल रहा है कि अगर कोई एईटी में जाने के लिए एलिजिबल है और साइमल्टेनियसली उसका फिजिक्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल, तो फिजिक्स वाला सर्कल देखना रहेगा हमें. फिजिक्स वाले सर्कल में 80 परसेंटाइल के ऊपर, इसके अंदर तो कहना है ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो कम से कम 2 सेक्शन में 80 परसेंटाइल से ग्रेटर लाएंगे और ओवरऑल 90 से ग्रेटर लाएंगे और फिजिक्स में 80 से ग्रेटर लाएंगे. उनको वो डायरेक्टली कंसिडर कर लेगा. बीआईई कंसिडर्स देयर 80 स्कोर. बढ़िया. एनी अदर कैंडिडेट एट और अबव 80th परसेंटाइल इन पी. एनी अदर कैंडिडेट मतलब कौन बचा? ओनली पी वाला. बट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर 80, ये लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे 80 के लिए. इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन अ सेपरेट टेस्ट. मतलब यहां के जो 2 लोग हैं ओनली पी वाले, दे आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली अपियर फॉर विच एग्जाम? फॉर बीआई. सेपरेटली अपियर फॉर बीआई. बीआई के लिए एक अलग एग्जाम में अपियर करना पड़ेगा फॉर फाइनल सिलेक्शन. ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट्स. अगेन एक इंटरेस्टिंग डेटा, 400 बच्चे हैं हु आर एट अबाउ 80th परसेंटाइल इन पी. मतलब ये 200 तो ओवरऑल ग्रेटर देन 90 वाले हैं. बीआईई बोल रहा है कि वैसे 400 लोग हैं, वैसे देयर आर 400 पीपल हु आर अबाउ 80th परसेंटाइल इन पी. तो फिजिक्स में 80 परसेंटाइल के ग्रेटर देन इक्वल टू 400 लोग हैं. 400 में से ये 3 कैटेगरीज को तो वो डायरेक्टली कंसिडर कर लेगा, इसे कंसिडर नहीं करेगा. तो 400 में से अगर ये 3 कैटेगरी माइनस कर दें तो बचे हुए लोगों को अलग से टेस्ट देना पड़ेगा और ये 3 ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो गए. सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट in terms of basic understanding. Now let's try and see कि ये जो given data है 200 candidates का, उसके लिए structure Venn diagram का बनाकर कैसे solve होगा. So I've created the Venn diagram. यहाँ पर physics, chemistry, maths जो भी हमने समझा, अब उसकी values fill करने का टाइम आ गया है. तो I know that there are 200 candidates with greater than or equal to, so bracket में लिख देते हैं greater than or equal to 90 परसेंटाइल. और ये जो डेटा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, ये greater than or equal to 80 परसेंटाइल का है. This is overall. सो ये ओवरऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 90 परसेंटाइल. अब कंडीशन क्या दी है? नो वन इज बिलो द 80th परसेंटाइल इन ऑल 3 सेक्शंस. मतलब नन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? परफेक्ट. व्हाट एल्स इज गिवन? 150 आर एट और अबव 80th परसेंटाइल इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस. अब वेरिएबल्स एलोकेट कर देते हैं. सो वेरिएबल्स जनरली आई एलोकेट एज एबीसी.
for only वाला region, DEF. So this is a part of our basic theory in classroom कि हम exactly 2 को DEF से represent कर दें, all 3 को G से represent कर दें. तो हमें ये जो डेटा दिया है 150 वो किसका दिया है? exactly 2 मतलब DEF. So I'll write it here, D plus E plus F. इसका डेटा हमें कितना दिया है exactly 150. अब सोच के देखो, DEF का डेटा exactly 150 है, तो कैन आई से ABC और G, ABC और G का डेटा 50 होना पड़ेगा, क्योंकि हमें DEF, ABC और G सबका टोटल 200 दिया है. तो मैं डायरेक्टली ये भी लिख लूं, ABC प्लस G का टोटल बचा हुआ 50 कैसे आ रहा है? 200 माइनस 150. तो एग्जैक्टली 2 वाले लोग जो हैं 150 हैं, तो एग्जैक्टली 1 और ऑल 3 मिलाकर 50 होंगे बचे हुए, बिकॉज नन तो 0 है. आई होप दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर. परफेक्ट. सो वी आर डन विद द सेकंड क्लू. थर्ड क्लू पे चलते हैं. सो थर्ड क्लू सेज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल ओनली इन P is same as the number of candidates greater than equal to 80 percentile only in C. Only in C, only in P, ये इक्वल है. और आगे क्या दिया है? And this is same as the number of candidates greater than equal to 80 percentile only in M, only in maths. तो कैन आई से A, B, C तीनों इक्वल दिए हैं. तीनों इक्वल मतलब तीनों को मैं A से ही रिप्लेस कर दूं. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट एंड आई एम गोइंग टू से कि ये भी A के बराबर है, ये भी A के बराबर है, तो ये भी हट जाएगा. एंड आई विल डायरेक्टली राइट दिस एज A each. ये तीनों A हो गए और यहां पर ये डेटा आ जाएगा 3A. A 3A प्लस G इज इक्वल टू 50. सो वी आर डन विद दिस क्लू. थर्ड वाला क्लू भी यूज कर लिया है. फोर्थ पे चलते हैं. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन P, उसका रेशियो दिया है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन C टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 80th परसेंटाइल इन M इज 4:1. अब बिलो 80th परसेंटाइल का मतलब क्या है? थिंक ऑफ दिस सर्कल जो वेन डायग्राम हमने फिजिक्स के लिए बनाया है. दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल में ये 4 पैरामीटर्स है ADG. तो इनको छोड़कर जो पैरामीटर्स बच गए A, F, A और N तो 0 ही है, बट इसको छुपा दिया अगर मैंने, सो वॉट एवर इज लेफ्ट इज A, F, A. ये डेटा इज लेस देन 80 परसेंटाइल फॉर फिजिक्स. तो दे आर सेइंग लेस देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो रेशियो है वो 4:2:1 है. लेस देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल में फिजिक्स को छुपा दें तो बचेंगे AFA विच इज 2A प्लस F. इसका रेशियो विद केमिस्ट्री में लेस देन 80, तो केमिस्ट्री वाले डेटा को छोड़कर जो बच गए दैट इज 2A प्लस E. 2A प्लस E. रेशियो विद मैथ्स वाले सर्कल को छुपा दें, हटा दें, तो 2A प्लस D. ये जो करस्पॉन्डिंग रेशियो गिवन है, this ratio is given as 4:2:1. That's it. फोर्थ क्लू भी यूज हो गया. और अब आगे तो BIE का सेपरेट क्राइटेरिया है. तो इतनी डेटा की मदद से हमें वैल्यू सोचनी है. तो वैल्यूज ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे आपको 4:1 का रेशियो दिखता है, assume them as an actual value of 4P, 2P and 1P. ताकि अगर मैं ऐड करूं तो टोटल इन सबका डेटा 4P, 2P और P मिलाकर 7P हो गया. सो आई एम राइटिंग इट हियर. 7P किसके बराबर होगा? ये सारे वेरिएबल्स के बराबर. 2A 6 है प्लस FED, ऑर्डर में लिख रहा हूं DEF. प्लीज check whatever I have written is correct or not, whether you have understood this or not. As said कि ये 4:2:1 है, तो 4P 2P P मान लेते हैं, तो ये 7P हो जाएगा. This 7P is nothing but equal to this part plus this part plus this part. 2A plus 2A plus 2A 6A हो गया. FED उसको ऑर्डर में लिख दिया DEF. अब DEF का डेटा हमें पता है 150. गुड. So we can now rewrite this as 7P is equal to 6A plus 150. Now this is a question of special equations to find out the possibilities. We have been very good at this. QBR के सारे 34 सेट्स हमने कर लिए हैं, तो which means we are very good at identifying hit and trial से पहली वैल्यू and then using special equations to list down. तो A की वैल्यू 0 चेक करते हैं. 150/7 7 से डिविजिबल नहीं है. A को 1 रखा. 156/7 डिविजिबल नहीं है. A को 2 रखा. 162/7 नहीं है. A को 3 रखा. 18 plus 150 is 168. 168/7 करके देखो 24 आ जाएगा. 24/7 168. मतलब A की कौन सी वैल्यू जस्टिफाई कर रही है? 3. और करस्पॉन्डिंग P का आंसर क्या आ रहा है? 24. सो एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई कि A3 हो जाए. A3 के बाद अब आगे की वैल्यूज निकालना या सोचना बहुत इजी है. आगे की वैल्यूज कैसे सोचें? सो विल से A का अगला आंसर 7 के कोफिशिएंट से बढ़ेगा. सिंपल तरीका जो हम स्पेशल इक्वेशंस में फॉलो करते हैं, दैट इंटरचेंज कर दो कोफिशिएंट्स.
तो 7 से बढ़ा दिया। अगली इंटीजर वैल्यू a की जस्टिफाई करेगी, वो है 10। अगर a 10 करेगा तो p के लिए कैलकुलेट नहीं करना है, p के लिए 6 के कोफिशिएंट से वैल्यू चेंज होगी। 24 प्लस 6 30। सिमिलरली a के लिए अगला इंटीजर आंसर 7 के गैप पे 10 और 7 कितना आ जाएगा 17। p का करस्पॉन्डिंग आंसर 6 के गैप पे 36 एंड सो ऑन, ऐसे निकालते जाएंगे। बट एक क्विक चेक, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन भी है कि 3a प्लस g का टोटल 50 ही हो सकता है। a को 3 रखें तो 3 3 9, g की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 41 आ जाएगी, एक्सेप्टेबल है। 10 रखा a को तो 3 10 30, g की वैल्यू 20 आ जाएगी, एक्सेप्टेबल है। a को 17 रखा तो 17 3 51 हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई इज दिस नॉट एक्सेप्टेबल? क्योंकि ये एक्सीड कर गया 3a प्लस g के टोटल को। तो अगर a 17 ही एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके आगे की सारी वैल्यूज तो डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, विच मींस वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 सिनारियोज। 2 ही सिनारियो बच गए, p 24 वाला a 3 करस्पॉन्डिंग और p 30 वाला जिसमें करस्पॉन्डिंग a 10 है। अब अगर एक बार a 3 p 24 ले लें तो एक क्विक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि सिनारियोज कैसे बिल्ड कर सकते हैं टू सॉल्व। तो मैं यहां पहला केस सॉल्व कर देता हूं, केस 1। सो केस 1 में बस वैल्यूज एक बार निकालना समझना है, बहुत ईजी है। a को 3 ले लिया, जैसे ही आपने a को 3 ले लिया है, चेक करो 3 3 9, 50 माइनस 9, g की वैल्यू भी आपकी आ गई। g की वैल्यू कितनी आ गई 41। इनफैक्ट आई विल पुट इट हियर ताकि क्लैरिटी और आ जाए। ये सारी वैल्यूज 3 3 हो गई, a3 आ गया, और a3 आने के बाद आपका g कितना आ गया 41। 41 प्लस 9 मिलाकर 50 हो गया। अब मैं बची हुई d e f की वैल्यू कैसे निकालूं? n तो 0 है ही, तो यहां पर ये रेशियो वाला पार्ट पता है ना, मैं p की वैल्यू पता है क्या? यस, a जब 3 है तब p कितना है 24। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि 2a प्लस d जो है वो p के बराबर है, 1p के बराबर है। a की वैल्यू 3 थी, मैं ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3 2 6 प्लस d इज इक्वल टू 24। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 18। मैंने सीधे d को लिख दिया 18 18। ये समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है? वी आर इक्वेटिंग दिस 2a प्लस d वाला पार्ट टू बी इक्वल टू p। 2a प्लस e वाला पार्ट 2p के बराबर है, 2a प्लस f वाला पार्ट 4p के बराबर है। p हमें पता है 24 है, 24 है, तो मैं यहां पुट कर रहा हूं a3 रखा तो 6 प्लस e, यहां भी 6 प्लस है, हर बार 6 प्लस चलता जाएगा। 6 प्लस e इज इक्वल टू 24 टू 48। 6 प्लस e इज इक्वल टू 48, तो e की वैल्यू कितनी हो गई 42। यहां लिख लेते हैं e 42 आ गया। सो करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर e इज 42। और 6 प्लस f इज इक्वल टू 24 4 96, 96 माइनस 6 90। तो ये सारी वैल्यूज आ गई 3 3 3 18 41 42 और 90। ये पहला सिनेरियो बन गया। सिमिलरली यू कैन सॉल्व फॉर केस 2। मैं कर देता हूं, यहां पर a की वैल्यू 10 ले लेते हैं, a की वैल्यू 10, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p ऑलरेडी 30 पता है ना a 10 के लिए, g की वैल्यू 10 3 30, तो g की वैल्यू 20 आ जाएगी। फिर सेम चीज 2a प्लस d, अब a हमारा 10 है तो 2a मतलब हमेशा 20 प्लस d, 20 प्लस e, 20 प्लस f होगा। 20 प्लस d किसके बराबर? p के बराबर 30, तो 20 प्लस d 30 के बराबर, तो d कितना जाएगा 10। सो d की वैल्यू 10 आ गई। फिर 20 प्लस e 32 60 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 40, e की वैल्यू 40 आ गई। और 20 प्लस f 4p के बराबर 120 के बराबर, तो चेक कर लो 20 प्लस f 120 के बराबर, तो f कितना आ गया 100। सो d e f की वैल्यू भी आ गई। सो सेकेंड सिनेरियो में 10 10 10, g विल बी 20, दिस विल बी 10 40 एंड 100। तो दो तरह के वेन डायग्राम बनेंगे। इतना पार्ट क्लियर है। नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। तो ये दो पॉसिबल डायग्राम जो हमने सॉल्व करे अभी थोड़ी देर पहले, g की वैल्यू 41 व्हेन यू आर टेकिंग as3 abc तीनों इक्वल थे, और 10 10 10 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने सारे निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछा क्या है वो देखते हैं। What best can be concluded? What best can be concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE who were at or above the 90th percentile? देखो ये डेटा है जो 90th percentile के ऊपर थे, greater than equal to 90th percentile। सेपरेट टेस्ट किन्हें देना पड़ेगा? सेपरेट टेस्ट उन्हें देना पड़ेगा जो फिजिक्स में 80 परसेंटाइल के ऊपर हो, लेकिन कम से कम 2 सेक्शन AET के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे। AET के लिए एलिजिबल कौन कौन लोग हो रहे थे? ये लोग AET के लिए एलिजिबल है। तो एलिजिबल कौन नहीं है उसे टेस्ट देना पड़ेगा, ये 3 लोग या 10 लोग। तो करेक्ट आंसर चॉइस ए 3 और 10। क्वेश्चन डन। सो दिस 3 दिस 10 80 परसेंटाइल के ऊपर आए हैं फिजिक्स में, ग्रेटर या इक्वल आए 80 परसेंटाइल के फिजिक्स में, लेकिन कम से कम 2 सेक्शंस में क्वालिफाई नहीं हुए, तो AET के लिए
एलिजिबिलिटी फेल हो गई इनकी। अब एईटी के लिए एलिजिबल नहीं है तो एईटी का स्कोर बीआई नहीं ले सकता, तो बीआई को अपना अलग टेस्ट करवा के इनको चेक करना पड़ेगा। दैट इज द डेटा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the number of candidates who are at or above 90th percentile overall and also above the 80th percentile in all three sections is actually a multiple of 5. All three sections मतलब intersection, ये 41 वाला डेटा है 20, तो ये बोल रहे हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया, तो दिस केस इज वैलिड। अब इस वैलिड में 25 का मल्टीपल है हमारा। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज इट दैट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who are at or above 90th percentile overall, ये पता ही है हमें, and at or above 80th percentile in both physics and maths, physics and maths दोनों में। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, फिजिक्स एंड मैथ्स में ये इंटरसेक्शन आएगा जो येलो से हाईलाइट करा है। फिजिक्स एंड मैथ्स ओनली बोलते तो 40 आता, सिर्फ फिजिक्स एंड मैथ्स बोला है तो ये 20 ऑल थ्री में है, ये भी फिजिक्स और मैथ्स को तो बिलोंग करते ही हैं। 40 और 20, your correct answer for this question will be 60. Theta type question, you will input 60 as your answer and move on. I'll erase this part. Let's look at the next question. Third question में बोला है the number of candidates who are at 90th percentile overall also above the 80th percentile multiple of 5, मतलब फिर से यही सेट लेना है, सेम टू सेम डेटा। How many candidates were shortlisted for AET? हमें पता है AET की शॉर्टलिस्टिंग, AET की शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 परसेंटाइल ओवरऑल परसेंटाइल लिख दो, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल, एंड एटलीस्ट टू सेक्शंस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल चाहिए, ये क्राइटेरिया है। तो ये पूरा डेटा सेट है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 का ओवरऑल, और कम से कम दो सेक्शंस में, मतलब एटलीस्ट 2, तो ये रीजन आएगा, ये ऑल 3 वाला आएगा, ये 2 वाला रीजन आएगा, ये 2 वाला रीजन आएगा। ये जो 4 टिक लगे इनका एडिशन करना है, 100 और 20, 120 और 40, 160 और 10, 170। आंसर क्लियरली विल बी 170, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? परफेक्ट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबव 90th percentile overall and also are at above 80th percentile in P in CET. अब remember first paragraph, if I go back to the first data set that was available, look at this, हमारे पास ये डेटा है कि there are 400 candidates who are at or above 80th percentile in physics. 400 बच्चे ऐसे हैं जो 80 परसेंटाइल और अबव फिजिक्स में लाते हैं, और उन्होंने बोला एनी अदर कैंडिडेट हु इज अबव 80th परसेंटाइल इन फिजिक्स इन सीईटी बट हु इज नॉट एलिजिबल फॉर एईटी इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सेपरेट टेस्ट। मतलब इन 400 में से वो नंबर हटा दो, वो नंबर कौन सा हटा दो जो एईटी के लिए एलिजिबल है, तो उन सबको अलग से टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिक्स में ग्रेटर देन फिजिक्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 परसेंटाइल वाला जो नंबर है वो 400 है। सो फॉर दिस क्वेश्चन we know that overall there are overall 400 people who have qualified physics with greater than or equal to 80 percentile. 80 percentile से ऊपर 400 लोग हैं। अब वो बोल रहे हैं कि how many candidates had to sit for the separate test for BIE. ठीक है, अच्छा एक और डेटा, इन दो में से कौन सा डायग्राम वैलिड है वो चेक करने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए दिया है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर एट और अबाउट 90th परसेंटाइल ओवरऑल एंड आल्सो आर एट अबाउट 80th परसेंटाइल इन पी इन सीईटी इज मोर देन 100। तो मोर देन 100 मतलब ये वाला डेटा फिजिक्स का डेटा, तो फिजिक्स का डेटा 42, 41, 18, दिस इज 101 एंड 3, 104, 40 और 20, 60 और 10, 70 और 10, 80, ये तो 80 है। हमें ये डेटा दिया है ग्रेटर देन 100, तो ये सेट नहीं हो सकता, पॉसिबल सिनेरियो ये है। अब यहां तक का सिनेरियो तो आ गया, दिस इज 104, तो जो कंडीशन दी थी कि इज मोर देन 100, कौन सा, अबाउ द 80th परसेंटाइल इन पी इज मोर देन 100, अबाउ द 80th परसेंटाइल इन पी, फिजिक्स में 80th परसेंटाइल से ऊपर 100 से ज्यादा बच्चे 104, ये वाला रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि 100 से कम बच्चे 80 आ रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कितने बीआईई के लिए अपियर करें, तो टोटल 400 बच्चे थे, 400 में से कैन आई से इनको बीआईई में अपियर नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है, क्योंकि एटलीस्ट 2 या एटलीस्ट 3 वाले हैं। तो 400 में से सिर्फ इन 3 कैटेगरी को 42 और 41 कितना हुआ, 42 एंड 41 इज 83, 83 एंड 18 101, तो 101 लोगों को नहीं करना है, माइनस कर देते हैं। तो 400 में से 100 गए, 301 और गया 299 को डेफिनेटली अपियर करना पड़ेगा। चॉइस ए 299 आंसर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये 400 कहां से आया, ओरिजिनल फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन जो गिवन डेटा सेट था वहां गिवन था, फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ज्यादा लाना जरूरी है,
अगर आपको BIE कंसिडर करे। दूसरा, AET को कंसिडर कब कर लेगा BIE? जब आप AET में क्वालिफाई करते हो। AET में क्वालिफाई कौन करेंगे? जो कम से कम 2 सेक्शंस में 80% के ऊपर लाते हैं। ये जो 3 बच्चे हैं ये नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई डायरेक्ट कंसिडरेशन के लिए, दे विल हैव टू अपीयर फॉर BIE। तो ये 3 अलग से काउंट करने की जगह हमने बोला कि टोटल 400 है, 400 में से कितने लोगों को अलग से टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बचे हुए सबको देने की जरूरत है। तो कितनों को जरूरत नहीं है? ये एटलीस्ट 2 और 3 वाले। एटलीस्ट 2 में एग्जैक्टली 3 भी आ गए, एग्जैक्टली 2 भी आ गए, वो 101 वाला पार्ट माइनस कर दिया, 299 आंसर। कोई कंफ्यूजन होपफुली अब नहीं रहेगा, बट दिस वाज अ सीरियसली चैलेंजिंग सेट इन टर्म्स ऑफ दैट वेगनेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 परसेंटाइल किसी एक सेक्शन में, और फिजिक्स में 80 परसेंटाइल से ग्रेटर चाहिए, वैसे हम तीनों के लिए ग्रेटर देन 80 परसेंटाइल देख रहे हैं। लॉट ऑफ स्टफ टू बी कंसिडर्ड, बट आई होप द वे वी हैव अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड this particular set step by step, I think this should be pretty clear. Tell me in comments what was the time that you took, what were the challenges that you faced, any other input, any other alternate way that you feel you could have done this set. I'll be more than happy to listen to your comments. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.